today's topic is हो गया अपना transplantation. So in today's lecture we are going to discuss about the kidney and suprarenal gland. So these are the competencies covered under this topic. First, let's discuss about the kidney. Kidney क्या immune system आपका हो गया ना? Why नहीं हुआ? Okay. So what is kidney? Kidneys are two bean-shaped organs. Where it is situated? It is situated in the abdomen on the posterior abdominal wall, and it is a retroperitoneal organ. That is, kidney is present behind the peritoneum on the posterior abdominal wall. ठीक है? काम क्या है? Excretion of urine, है ना? क्या करता है? It will remove the waste product of protein metabolism, है ना? और क्या करता है? Remove करेगा excess of salt and water, ठीक है? Because maintain the water electrolyte balance maintain करेगा हमारी body में, ठीक है? Because you all know what are the functions of kidney. Okay, now we will discuss about the anatomy of kidney. So it is two bean-shaped organs. It is reddish brown in color and it is situated on the posterior abdominal wall behind the peritoneum. So first about the location. अभी बताया मैंने location आपको. कहाँ present है? It is present on the posterior abdominal wall, either side of the vertebral column. ठीक है? Vertebral column के either side में on the posterior abdominal wall behind the peritoneum, opposite T12 to third lumbar vertebra. This lumbar vertebra किस vertebra के opposite होगी? T12 to L3 के opposite होगी. It is opposite to T12 to L3 and located on the posterior abdominal wall. ठीक है? और आगे से पपड़ी से peritoneum का relation होगा. It's only on the anterior surface because it is a retroperitoneal organ and is situated on either side of the vertebral column. ठीक है? You all know about the 9 quadrants of abdomen. So अब अगर if you want to know कि on which quadrant it is located, so it is located in ये कौन सा quadrant है? Epigastric. This is hypochondrium. This is umbilical and this is lumbar. So each kidney is located in all these 4 quadrants. ठीक है? So this is epigastric region में होगा, then hypochondric region में, then a part is in the umbilical region and a part is in the lumbar region. So these are the 4 quadrants of the abdomen which is occupied by the kidney. ठीक है? और vertebral level क्या है? It is opposite T12 to L3 vertebrae. ठीक है? This is the right kidney, this is the left kidney. You all know that on right side क्या है? ठीक है? Due to the presence of liver, right kidney is slightly lower in position as compared to left. ठीक है? Right is slightly lower in position due to presence of liver on the right side as compared to left one. Or the second important thing to remember that the left kidney is nearer to the midline as compared to the right. Right one lower in position है, left one nearer to the midline. ठीक है? How? ये 2 बात याद रखनी है कि right kidney is lower in position, right is lower in position, it is lower in position due to the presence of liver. Whereas left kidney is nearer to the midline as compared to the right one. Now the axis of the kidney. ठीक है? एक axis से अपन long axis को हम क्या बोलेंगे? Vertical axis. So this is the long axis of the kidney. The long axis of the kidney is directed downward and lateral. है ना? जब kidney आप lateral position में hold करोगे तो आपको कैसे hold करना है? Downward and laterally, because the long axis of the kidney is directed, or the vertical axis of the kidney is directed downward and medially. Downward and laterally. That means कि किसी का upper part होगा वो nearer होगा और lower part जो होगा वो क्या होगा? far away होगा as compared to the upper. ठीक है? So the long axis of the kidney is directed downward and laterally, hence the upper pole of each kidney is nearer as compared to the lower pole. तो इसको कहते हैं कि the upper pole is about 2.5 centimeter from the midline. ठीक है? जहाँ यहाँ पे mid वाला portion होगा वो midline से 5 centimeter apart होता है और lower वाला portion 7.5 centimeter apart from the midline. ठीक है? लेकिन याद रखना है the upper pole is 2.5 centimeter, mid part of the kidney is 5 centimeter from the midline and the lower pole is
7.5 centimeter from the midline, and hence the long axis or the vertical axis of kidney is directed downward and laterally. Laterally जा रहा है, that's why lower pole सबसे far apart है, that is 7.5 centimeter from the midline. The second thing is the transverse axis. दूसरा कौन सा axis होगा? आगे this is the transverse axis. Transverse axis भी क्या होता है? It is directed backward and laterally. ठीक है? Why? It is अपने posterior abdominal wall की भाषण पढ़ी है ना? इसी पढ़ी ना, cos major, exer और quadratus femorum. These muscles are present in the form of sloping position. So due to the sloping muscles of posterior abdominal wall, the kidney posterior abdominal wall is situated है. So due to the sloping muscles of posterior abdominal wall, the transverse axis is directed towards backward. है ना? muscle ऐसी नहीं है, ऐसे तो क्या हो जाएगा आपको? Backward हो जाएगा, पीछे की तरफ आएगा और बार बार लेफ्ट साइड में जाएगा. So that's why the transverse axis of kidney, due to the sloping muscles of posterior abdominal wall, it is directed backward and laterally, and the long axis is directed downward and laterally. ये दो चीज याद रखना है कि long axis downward laterally है और transverse axis backward and laterally है. ठीक है? अब now as the posterior surface of the kidney, upper part of the posterior surface of the kidney is related with the diaphragm. Diaphragm के साथ रिलेशन है तो क्या होगा? जब हम इसका फायर करेंगे तो क्या होगा? किडनी का भी मूवमेंट होगा. तो अप्रॉक्स कहते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर मूव करता है डाउनवर्ड आगे टाइम ऑफ रेस्ट. ठीक है? उसका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के टाइम किडनी मूवमेंट करेगा और ये मूवमेंट क्यों होता है अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर? As the upper part of the posterior surface of the kidney is related with the diaphragm. ठीक है? हाँ, stand up. काम करने के लिए वो भी काम करने के लिए काम करने के लिए इस तरह से बात करता है. Next, हाँ, vertical level काम करने के लिए कहते हैं कि फाइब्रोसिस से रिलेटेड है. What is the vertical level of transparency? हाँ, वो दिख रहा है डायग्राम में तुम्हें. It is related with the lower border of L1 vertebrae. So this transpyloric सबको पता है, स्टमक से फाइब्रोसिस से रिलेटेड है और L1 के लोअर बॉर्डर पे होता है, तो that's why इसको हम transpyloric plane कहते हैं. This transpyloric plane अभी क्या होता है कि राइट किडनी लोअर इन पोजीशन है लिवर की वजह से और लेफ्ट किडनी हायर इन पोजीशन है. तो जो बीच वाला स्ट्रक्चर है उसको वहाँ पे हाइलम कहते हैं. हाइलम यू ऑल नो जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड करेगा किडनी में और आउट करेगा. तो वो क्योंकि राइट किडनी का है इट इज लोअर इन पोजीशन, so this transpyloric plane which passes from the lower border of L1, it passes from the upper part of the hilum of kidney and lower part of the hilum of kidney of left kidney. ठीक है? राइट किडनी के अपर पार्ट हाइलम के अपर पार्ट से क्रॉस करेगा और लेफ्ट किडनी के हाइलम से लोअर पार्ट से करेगा. ठीक है? अपर पार्ट, ठीक है, यहाँ पे अपर पार्ट से करेगा क्योंकि ये का है अपर इन पोजीशन है और ये लोअर इन पोजीशन है. So this is transpyloric plane is in relation with the lower part of hilum of kidney. So these are about the location. कहाँ present है वो क्या कहते हैं. ठीक है? तो present कहाँ है? P2 L3 on the posterior abdominal wall behind the peritoneum. Four quadrants से related है. अब like epigastric, hypochondrial and lumbar. ठीक है? एक्सिस कैसा है? डाउनवर्ड एंड लेटरली वर्टिकल एक्सिस है और बैकवर्ड एंड लेटरली ट्रांसवर्स एक्सिस है. ठीक है? और ट्रांसपैरेंट प्लेन के रिलेशन में क्या पास करेगा? अपर पार्ट ऑफ हाइलम ऑफ राइट किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी. ठीक है? और अपर पोल इज 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड लोअर पोल इज 7.5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिड लाइन. अब नाउ द शेप तो अभी मैंने आपको बताया था क्या शेप है. व्हील शेप. इट इज द सर्कल शेप ऑफ व्हील. कलर क्या है? इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर. और अगर इसके डायमेंशन की बात किया जाए तो किडनी का जो लेंथ होता है दैट इज 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ किडनी इज 3 सेंटीमीटर. 11, 6 और 3. लेंथ 11, ब्रेथ 6, थिकनेस दैट इज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इट इज 3 सेंटीमीटर थिक. तो वेट अच्छा राइट किडनी के कंपैरिजन में लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लॉन्गर एंड नैरो. ठीक है? लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली क्या होता है? लॉन्गर भी होता है और नैरोअर होता है एज कंपेयर टू द राइट वन. अदरवाइज डायमेंशन 11, 6 एंड 3 है. तो वेट
In male, the weight of kidney is from 150 to 170 and in female it is 130 to 150 grams. ठीक है, मेल में 150 टू 170 के बीच में और फीमेल में 130 टू 150 के बीच में है. लेंथ 11, 6 और थिकनेस 3 सेंटीमीटर. याद रखना है कि लेफ्ट वाला लॉन्गर और नैरोअर है, रेडिश ब्राउन इन कलर है और वी शेप है. नाउ द एक्सटर्नल फीचर. ईच किडनी हैज टू एंड और द पोल भी कह सकते हो, दैट इज द अपर एंड और अपर पोल, लोअर एंड और लोअर पोल. इट हैज गॉट टू सरफेसेस. एक आगे की तरफ होगा एंटीरियर सरफेस, जो बैक में बच्चे नॉर्मल वॉल से रिलेटेड होगा, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस. टू बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, मिडलाइन की साइड होगा, वहाँ पे हाइलाइट करना होगा, एंड अ लेटरल बॉर्डर एज वेल एज हाइलाइट. These are the external features. One by one हम देख लेते हैं. This is the upper end or the upper pole of each kidney. The upper end of each kidney is thick and rounded. कैसा है? थोड़ा सा broad सा है, rounded है. जो lower pole होता है, that is more थोड़ा सा thin और pointed है. Lower pole is thin and pointed. Upper pole is thick and rounded. Upper pole is related with the suprarenal gland. So the upper pole of the kidney is related with suprarenal gland. और लोअर पोल का अप्रॉक्स शेप है ना, सबको पता है ईलियक क्रेस्ट क्या होता है. ईलियक क्रेस्ट के अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर अबव होता है. ठीक है, तो अबव इट इज अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर अबव द ईलियक क्रेस्ट. So this is the upper pole, which is related with the suprarenal gland. It is rounded and it is lower pole, it is pointed. ठीक है, so this is upper and lower pole. It has got two surfaces, the anterior surface and the posterior surface. अच्छा, ये जो भी आपको मैं सरफेस बताऊंगी, आप जब भी साइड एग्जामिनेशन करोगे तो इट इज नॉट विद द हेल्प ऑफ सरफेसेस. जब आप ये अपना आज के लिए देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट क्या रहेगा कि जो मैम ने बताया था तो है ही, बट ये डिस्क्रिप्टिव है. तो कहते हैं कि द एंटीरियर सरफेस इज रफ, सॉरी, irregular and convex and the posterior surface is smooth and flat. But yet आपको दोनों जब देखोगे ना किडनी को आप हैंड में करके तो इट इज आइडेंटिफाई करना why the surface is this side का है, that is not possible. तो आप कैसे करोगे? हाइलम से करोगे. हाइलम से कैसे करना हम जानते हैं. ठीक है, तो ये बस डिस्क्रिप्टिव है कि एंटीरियर सरफेस इरेगुलर है और कन्वेक्स है और पोस्टीरियर सरफेस फ्लैट है और स्मूथ सरफेस है. ठीक है, तो दिस इज द एंटीरियर सरफेस व्हिच इज कन्वेक्स एंड इरेगुलर और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस है वो फ्लैट होगा और स्मूथ होगा. तो इससे बोल रही थी इसके थ्रू आप साइज डिटर्मिनेशन को नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब आप रोल करोगे तो दोनों एक ही तरह दिखेगा. आपको बहुत मुश्किल है उससे आइडेंटिफाई करना. किडनी का साइज डिटर्मिनेशन इज डन ओनली एंड ओनली थ्रू द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द हाइलम. हाइलम में जो स्ट्रक्चर है उसको आइडेंटिफाई करोगे तभी आप साइज डिटर्मिनेशन कर सकते हो. ठीक है, नाउ द टू बॉर्डर, द लेटरल बॉर्डर इज द कन्वेक्स बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर व्हिच इज टुवर्ड्स द मिड लाइन. अपर और लोअर पोल के पास ये क्या है? कन्वेक्स है और मिड लाइन में क्या है? कंकेविटी है. एंड दिस कंकेविटी हैज अ वर्टिकल स्लिट नोन एज हाइलम. ठीक है, इस जो मीडियल बॉर्डर ऊपर और नीचे कन्वेक्स है और मिड लाइन में क्या है? कंकेविटी है. इस कंकेविटी में टुवर्ड्स द अंदर किडनी के साइड में एक आपको वर्टिकल स्लिट मिलेगा एंड दिस वर्टिकल स्लिट इज नोन एज हाइलम ऑफ किडनी. So these are the external features of हम लोग हाइलम देखते हैं. This is the hilum. Hilum is present along the middle border in the mid part. Mid part में जो concavity था वहाँ पे एक vertical slit like aperture होगा, एक fissure होगा जिसको हम कहते हैं hilum. और hilum की सीधे स्ट्रक्चर में होगा ऑर्गन होगा कि क्या उसका काम क्या है कि वैसे एंटर करेंगे और एग्जिट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे सेम पर्पस है कि डोनेशन विल गेट into the kidney and exit from the kidney. So what are the structures? तो जो हाइलम में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? रीनल वेन मिलेगा. देन यू विल गेट द रीनल आर्टरी. सबको पता है वेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? थिन वॉल होगी, कोलैप्स होगी, फिर आपको थिक वॉल और ह्यूमन मिलेगा तो वो आपकी आर्टरी होगी. उसके बाद आपको क्या मिलेगा? पेल्विस मिलेगा. ठीक है, पेल्विस के पीछे इट मे बी प्रेजेंट अ सब्सिडियरी ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. तो दीज आर द फोर स्ट्रक्चर जिसको आप आइडेंटिफाई करके यू कैन identify कि this is the anterior aspect and this is the posterior aspect of the kidney. So from anterior to posterior, what are the relation? दोनों renal vein, then renal artery, then renal pelvis. और renal pelvis को इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऊपर ब्रॉड से ऊपर नीचे आकर के यूरिन यूरेटर में कंटिन्यू रहता है. तो मैक्सिमम किडनी में नीचे तक कंटिन्यू रहता है, एक पोर्शन रहता है. तो दैट इज द यूरेटर. नीचे कंटिन्यू होगा तो उसका पोर्शन रहता ही है.
So vein, then artery, then renal pelvis, और उसके नीचे there is a subsidiary branch of renal artery. Apart from it, हाइलम में आपको और क्या मिलेगी, नर्व ट्यूब हो सकता है ना, और क्या होगी, लिम्फेटिक्स हो सकती है, बट आपको आइडेंटिफाई ये सारे स्ट्रक्चर्स करने हैं. देखिए नर्व प्रेजेंट होगा, लिम्फेटिक प्रेजेंट होगा, और कुछ पेरिनेफ्रिक फैट भी क्या प्रेजेंट होता है, पेरीरिनल और पेरिनेफ्रिक फैट. So these are the content which are present within the hilum, and the relation is brain, last याद रख सकते हो, brain, artery, and then pelvis, and then again a subsidiary branch of renal artery. Now the relations of kidney, अभी मैंने क्या बताया था कि kidney is a retroperitoneal organ, ठीक है. तो retroperitoneal organ है ना, तो सिर्फ only the anterior surface में कुछ तो विस्तार होगी जो कि पेरिटोनियल विस्तार है, तो वहाँ पे बस पेरिटोनियल का रिलेशन आएगा, बाकी चल जाएगा. तो ऑन द राइट साइड आपको 5 ऑर्गन के रिलेशन मिलेंगे. यहाँ पे अपर पोल के पास अभी बताया था मैंने क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है. देन द मोस्ट ऑफ दिस पोर्शन इज रिलेटेड विद द राइट लोब ऑफ द लिवर. जो मीडियल पोर्शन है दिस इज रिलेटेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम. नीचे में यहाँ पे राइट कोलिक स्ट्रक्चर आएगा, दैट इज हेपेटिक स्ट्रक्चर, और सबसे नीचे यहाँ पे जर्जिनम का रिलेशन आएगा. तो आप बताओ इसमें से कौन सा पेरिटोनियल रिलेशन होगा, कौन सा ऐसा होगा. तो दो ऐसे एरियाज है जहाँ पे पेरिटोनियल कौन कौन सा ऑर्गन है, एक तो राइट लोब ऑफ लिवर हो गया, और एक ही होगा आपका जर्जिनम है ना. ये तो फ्लेक्चर है, कोलोन यहाँ पे बेंड कर रहा है, तो इसको फ्लेक्चर कह रहे हैं. तो कोलोन तो आपका रेट्रोपेरिटोनियल है, यहाँ नहीं आएगा, सुप्रारीनल ग्लैंड में नहीं आएगा, और सेक्रेटियोडम नहीं आएगा. क्या आपका आएगा रिलेशन में, राइट ऑफ द लोब ऑफ द लिवर, यहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग होगी, और जर्जिनम के पास पेरिटोनियम की कवरिंग होगी. ठीक है. लेफ्ट साइड में क्या क्या रिलेशन, अपर पार्ट में लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, देन यहाँ पे स्टमक आएगा, उसके नीचे यहाँ पे पैंक्रियास, और पैंक्रियास का रिलेशन होगा तो कौन सा वेसल होगा, स्प्लेनिक आर्टरी आएगा. उसके ऊपर यहाँ पे आपको स्प्लीन का रिलेशन मिलेगा, देन जर्जिना, एंड यहाँ पे आपको लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर आ जाएगा. अब यहाँ बताओ कि कौन सा इसका स्टमक, स्प्लीन एंड जर्जिना. वहाँ तो दो था, लिवर और जर्जिनम. यहाँ क्या आ गया, पैंक्रियास है ना, तो यहाँ आपको क्या आ गया, स्टमक, स्प्लीन और जर्जिना. So these are the structure which are जहाँ पे these are the surface of kidney which is related with the आपका पेराइटल पेरिटोनियम से रिलेटेड होगा, बाकी तो डायरेक्टली ऑर्गन से रिलेटेड होगा. कहने का मतलब यही है, ये सारे स्ट्रक्चर पेरिटोनियम होगा ऑर्गन के और किडनी के बीच में, बाकी जो है वो डायरेक्टली किडनी के रिलेशन में है, बिकॉज उसके बीच में कोई भी पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं. Now the posterior relation of the kidney, the posterior relation of both the kidneys are same except about the rib. On the right side, because it is lower in position, it is related only with a single rib, that is the 12th rib. Whereas left kidney क्या है, high in position है, तो यहाँ पे 2 rib से related होगा, the 11th and the 12th. So the upper part of the posterior surface is kidney of the kidney. On the left side, it is related with 11th and 12th rib, whereas on the right side, it is related only with the 12th rib. Apart from it, there are 4 muscles which are related on the posterior surface of kidney. ऊपर में क्या हो गया, डायफ्राम हो गया, और जो लोअर पोर्शन है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, सबसे पहले अंदर की तरफ फोर्थ मेजर, देन क्वाड्रेटस लंबोरम, और उसके भी लेटर भी ट्रांसवर्सल कहते हैं. तो these are the 4 मसल. अपर में आपको डायफ्राम हो गया, और नीचे में इसके पास जाओगे तो आपको फर्स्ट मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम, और सबसे लेटर भी ट्रांसवर्सल कहते हैं. As well as यहाँ पे आपको 3 nerves से related है. The posterior surface of kidney is related with 3 nerves, and all these nerves emerge from the lateral border of short muscle. ये short major muscle है, इसका ये lateral border है. यहाँ से आपको 3 nerves from above downward emerge करती हुई दिखेगी. The first one is the subcostal nerve, the second one is the iliohypogastric, and the third one is the ilioinguinal nerve. The subcostal, iliohypogastric, and ilioinguinal nerve, that is also related to the posterior surface, and it will emerge from the lateral border of short muscle. And along with the subcostal nerve, subcostal vessels. ठीक है. तो nerve and vessels में subcostal की तो दोनों vessel भी है, nerve भी है, बाकी iliohypogastric and ilioinguinal nerve, 4 muscles, 2 ribs on the left side and 1 rib on the right side. Now the coverings of kidney. Kidney is covered by 4 different coverings from inner to outer,
these are, सबसे पहले क्या होगा, fibrous capsule होगा जिसको हम renal capsule भी कहते हैं या through capsule भी कहते हैं. Just outside it there is presence of perirenal fascia, perirenal fat और perinephric fat. तो सबसे अगर ये देखो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ये ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दिखाया गया है. ये एक किडनी का पीस है. किडनी इज सराउंडेड बाय फर्स्ट बाय द रीनल कैप्सूल विच इज अ ट्रू कैप्सूल. उसके बाद नेक्स्ट लेयर आपका पेरिनेफ्रिक फैट आएगा. द थर्ड वन इज द रीनल फेशिया एंड द लास्ट वन जो सबसे बाहर कवरिंग होगी उसको पारानेफ्रिक या पारारीनल फैट कहते हैं. तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड फोर स्ट्रक्चर होंगे जो किडनी को सराउंड करेंगे. सबसे पहले renal fibrous capsule, then fatty layer, renal fat. उसके बाद renal fascia जिसको fascia of Gerota भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Fascia of Gerota. और उसके भी बाद pararenal fat. तो first about the renal fascia. Renal fascia क्या है? ये आपका thin membrane है which is formed from the condensation of the fibrous tissue of kidney itself. ठीक है, किडनी का जो बाहर का फाइब्रस टिश्यू है वही कंडेंस करके क्या बना देगा, एक कैप्सूल बना देगा जिसको हम क्या कहेंगे. और ये क्या करता है, क्लोजली इन्वेस्ट करता है किडनी. ठीक है, इसमें क्लोजली इन्वेस्ट द किडनी एंड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द किडनी इटसेल्फ. और जब ये किडनी को ऐसे सराउंड करेगा तो जो अंदर में हाइलम है ना, वो हाइलम को भी अंदर जाएगा, किडनी के अंदर एंटर कर जाएगा. पूरा हाइलम को लाइन करेगा. हाइलम को लाइन करने के बाद क्या होगा, मेजर माइनर कैविटीज सबको पता है, उस मेजर माइनर कैविटीज को भी लाइन करता है. तो दिस रीनल फेशिया इट इज अटैच्ड ऑल ओवर द आउटसाइड एज वेल एज इट लाइंस द हाइलम, मेजर माइनर कैविटीज और फिर वहीं पे जाकर के उसके साथ ब्लेंड करके. तो अगर इफ किडनी इज हेल्थी देन जो रीनल फेशिया की लेयर है वो आप इजीली स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को. बट इफ द किडनी इज इन्फ्लेम्ड तो क्या हो जाता है, ओवर द किडनी और तब हम उसको रिमूव करते हैं. ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल किडनी है उससे आप पूरी एक लेयर निकाल सकते हो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज द ट्रू कैप्सूल और द रीनल फाइब्रस कैप्सूल. ठीक है, बट इन सेम कंडीशन में क्या हो जाता है, ये पूरा एडियर हो जाता है और ये इजीली स्ट्रिप ऑफ नहीं हो पाता है. नाउ द सेकंड लेयर इज द पेरिनेफ्रिक फैट. फैट है तो क्या होगा, एडिपोज टिश्यू का एक लेयर होगा. इट इज अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू इन बिटवीन द fibrous capsule and the renal fascia. Fascia of Gerota और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा that is filled by the perinephric fat. And this perinephric fat जो उसका बाहर वाला कवरिंग है that is the renal fascia. ये क्या करता है, ये hold करने it provides, it will hold the kidney in position. है ना, किडनी को अपनी जगह में रखने के लिए हेल्प करता है. तो if अगर कोई पेशेंट को क्रोनिक डिजीज हो गया है तो उस केस में क्या हो जाता है, रीनल फेस जो पेरिनेल फेशिया है उसका क्या होता है, डिप्लीशन होता है, बढ़ने लगेगा. तो उस केस में क्या हो जाता है, किडनी का डाउनवर्ड डिसेंट होता है और डाउनवर्ड डिसेंट होने की वजह से क्या होगा, किंकिंग ऑफ यूरेटर हो जाता है ना. क्या हो जाता है, यूरेटर में एक बेंड आपको मिलेगा. तो दैट इज कॉल्ड किंकिंग ऑफ यूरेटर बिकॉज रीनल फेशिया उसको बाहर से सराउंड करके उसको अपनी जगह पे रखा हुआ है, वही कम हो गया तो क्या होगा, किडनी डिस्प्लेस होगा. तो इट इज अ लेयर ऑफ क्या है, एडिपोज टिश्यू है which fits the gap between the renal capsule and the renal fascia. The third one is the renal fascia. Renal fascia भी क्या है, एक fascia है which is made up of dense elastic connective tissue. है ना, किस चीज से बना हुआ है, it is formed of dense elastic connective tissue. और ये भी ये थर्ड लेयर है जो किडनी को सराउंड करेगा and it is made up of two further layers, एक किडनी के anterior और एक किडनी के posterior. The part of the renal fascia which is present anterior to the kidney that is ill-defined and it is known as fascia of Tolles. क्या कहते हैं, fascia of Tolles. क्या कर रहे हैं, वही देखिए. वो नाम तो नहीं देख रहे हैं. बैकअप का आपने हॉस्पिटल पे या घर पे रहकर एंजॉय करते हैं, यहाँ पे किसी दूसरों को फिर डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो जो रीनल फेशिया है विच इज मेड ऑफ डेंस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये जो रीनल फेशिया बाहर में सराउंड कर रहा है, तो एंटीरियर में जो पार्ट है रीनल फेशिया का वो वेल डिफाइंड है, उसको फेशिया ऑफ टॉल्स कहते हैं. जो पोस्टीरियरली फेशिया है दैट इज वेल डिफाइंड, ये थिक सा लेयर होता है और इसको फेशिया ऑफ ब्रोकन कहते हैं. ठीक है, फेशिया ऑफ टॉल्स आपकी बुक में होगा और फेशिया ऑफ ब्रोकन, और दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, फेशिया ऑफ जेरोटा कहते हैं.
बेसिकली इसका आपको ये पढ़ना है कि कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंशन है। देखो ये ग्रीन वाली लाइन है आपका रीनल फेशिया का, इट मीन ये एंटीरियर लेयर है दैट इज फेशिया ऑफ टॉर्डेट, और ये जुगरकैंड पोस्टीरियर लेयर है। जब दोनों लेयर ऊपर एक्सटेंड करेगा और इट विल एक्सटेंड अबव, और ये क्या करेगा सुप्रारीनल ग्लैंड को भी एनक्लोज कर देता है। बट जब ये सुप्रारीनल ग्लैंड को एनक्लोज करता है तो दोनों के बीच में एक सेप्टा होता है जो कि डिवाइड होता है। ऐसी किडनी को गया तो एनक्लोज किया, फ्यूज करके एक सेप्टा बना दिया, देन अगेन डिवाइड किया, सुप्रारीनल को एनक्लोज कर दिया और फिर जाके फ्यूज हुआ, और फ्यूज होकर के डायग्राम करिए सब डायग्रामेटिक फेशिया है उसके साथ जाके मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इट विल एनक्लोज द किडनी, join to form a septa, then again divide to enclose the suprarenal gland, then again fuse and combine होकर के it will merge with the diaphragmatic fascia। नीचे क्या होगा, नीचे जो दोनों रीनल फेशिया की लेयर है ये क्या होती है, ये ज्वाइन होती है। जो इसका एंटीरियर लेयर है वो जो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट है आपके एब्डोमेन में उसके साथ मर्ज कर जाएगी, और जो इसकी पोस्टीरियर लेयर है वो सीरियस फेशिया को कॉम्प्लीट करेगी। तो नीचे ओपन रहता है ना, इसीलिए मूवमेंट हो रहा है बताया। तो आगे वाली लेयर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू के साथ मर्ज कर गई, पीछे वाली लेयर फेशिया इलेक्ट्रस के साथ मर्ज कर गई। अब इसका मीडियल और लेटरल देखते हैं। लेटरली क्या हुआ, ये जो लेयर है ये आकर के ऐसे फ्यूज कर जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर, और आफ्टर फ्यूज इट गेट मर्ज विद द फेशिया ट्रांसफर। लेटरली किडनी को एंटीरियर पोस्टीरियर कवर किया, दोनों फ्यूज कर दिया और फेशिया ट्रांसफर के साथ कवर कर दिया। देन मीडियल साइड में क्या हुआ, जो एंटीरियर लेयर था वो किडनी को कवर करने के बाद इट विल कवर द, ये क्या है रीनल आर्टरी और रीनल वेन होगा, रीनल वेसल्स है उनको कवर करेगा। देन इट विल मर्ज विद द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ aorta और इंफीरियर वेना कावा। डायग्राम में यहाँ पे देखा है कि मिडलाइन में दोनों टिश्यू के मिडलाइन में क्या है इसका aorta और इंफीरियर वेना कावा है, तो उनकी जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वेन वेसल्स उनके साथ जाकर के वो मर्ज कर जाएगा। एज जो पोस्टीरियर लेयर है वो आपका जो फेशिया ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम है और सॉस मेजर के ऊपर जो फेशिया है उसके साथ फ्यूज करके लंबा वर्टिब्रा पे जाके आता है। ठीक है, बट जब ये दोनों लेयर जाकर के ऐसे मर्ज कर जाता है तो इट विल सेंड अ मिडलाइन सेप्टा जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर को फ्यूज करता है, और इट हैव अ पैसेज और अ गैप फॉर द पैसेज ऑफ रीनल वेसल्स एंड सेप्टा एंटीरियर पार्ट या वेसल से पीछे चला गया फेशिया के साथ, और ये जाकर के वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है। बट दोनों कनेक्टेड होता है वाया सेप्टा, और इस सेप्टा में क्या होगा, पैसेज होगा फॉर द रीनल आर्टरी एंड वेन। दैट्स व्हाई एक किडनी में अगर केडी एब्सेंट हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो वो किडनी दूसरी किडनी में नहीं जाता है क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक है। समझ में आ रहा है इस बात, क्योंकि ये सेप्टा को इग्नोर कर रहा है तो वो केडी कोई भी एब्सेंट होगा तो वो वन किडनी से दूसरी किडनी में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो क्लोज है। ठीक है, तो और जो लास्ट लेयर है दैट इज द paranephric fat। paranephric fat की लेयर है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ adipose tissue, but it is more prominent on the posterior side and especially on the lower pole of the kidney। ठीक है, तो सबसे बाहर paranephric fat की लेयर होगी जो कि सबसे ज्यादा prominent कहाँ होती है, posterior aspect में होती है, इवन कहाँ पे lower pole में। इसकी वजह से किडनी को ना पीछे से एक cushioning effect provide like a cushion to the kidney। So this is all about the covering of kidney। Now we'll come to the macroscopic structures of kidney। This is the cut section of kidney। ठीक है ना, किडनी को मैक्रोस्कोपिक सबको समझ में आ रहा है, तो हम naked eye से जो किडनी को कट करके देखेंगे, तो if you will cut the kidney longitudinally you will get the two structures। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं किडनी प्रॉपर, और हाइलम के पास एक स्पेस होता है, एक कैविटी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, renal sinus कहते हैं। So when you cut the kidney in a longitudinal section you will get two parts which you will get to see by the naked eye। So this broad portion जो कि कैप्सूल के जस्ट beneath होगा that is kidney proper, which is again divided into two parts, an outer renal cortex and a inner renal medulla। और हाइलम यहाँ था ना वर्टिकल स्प्लिट लाइन, हाइलम के पास एक आपको स्पेस मिलेगी, दिस स्पेस इज नोन एज रीनल साइनस। नाउ रीनल मेडुला आपको डार्क कलर मिलेगा और ये पेल स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर मिलेगा। इन दिस रीनल मेडुला अगर इसको और डिटेल में देखोगे तो इस रीनल मेडुला में आपको 8 to 11 ऐसे कॉनिकल मासेस मिलेंगे। क्या मिलेंगी? 8 to 11 आपने पढ़ भी लिया होगा फिर में 8 to 11 कॉनिकल मासेस मिलेंगे। इन कॉनिकल मासेस को क्या बोलते हो? रीनल पिरामिड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द रीनल पिरामिड।
और बाहर की तरफ जाओगे तो ये वाला पोर्शन क्या है, कॉर्टेक्स है। तो द पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स विच कैप ओवर द रीनल पिरामिड इट इज नोन एज कॉर्टिकल आर्चेस कहते हैं या कॉर्टिकल लोब्यूल्स कहते हैं उनको। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल लोब्यूल। इन बिटवीन दिस रीनल पिरामिड पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स प्रोट्रूड इनसाइड, ठीक है ना। मेडुला में क्या है, आपको 8 to 11 आपको ऐसे कॉनिकल मार्कर्स मिलेंगे डार्क कलर का, जिसको हम रीनल पिरामिड कहते हैं। और बाहर में क्या था, कॉर्टेक्स था। तो इस रीनल पिरामिड के ऊपर जो ये आर्च कर रहा है, ये पोर्शन, इनको हम कॉर्टिकल आर्चेस कहते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स है वो सिर्फ यहाँ नहीं है, इन पिरामिड, ये जो पिरामिड है मेडुला का, उनके बीच में भी अंदर प्रोड्यूस होता है। तो इस वाले पोर्शन को जो दो पिरामिड के बीच में प्रोड्यूस करता है, इसको हम रीनल कॉलम कहते हैं। तो कॉर्टेक्स की दो पार्ट होगी, एक पिरामिड के ऊपर जो कैप करती है दैट इज कॉर्टिकल आर्चेस, और दो मेडुला जो आपका पिरामिड है, दो पिरामिड के बीच में जो पोर्शन आ रहा है दैट इज कॉल्ड रीनल कॉलम। तो दीज आर कॉल्ड द रीनल कॉलम। अब ये वाला देखो, दिस इज द रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड अभी आपको ये पता ही होगा, दिस इज कॉल्ड द माइनर कैलिक्स। तो ये रीनल कैलिक्स का जो एपिसेल है वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है विद इन द माइनर कैलिक्स, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, रीनल सैकुलम। क्या कहते हैं, द पोर्शन ऑफ द एपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड विच इंटेंड और प्रोड्यूस विद इन द, इसे है ना, ये कहाँ कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है माइनर कैलिक्स से, ये माइनर कैलिक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को रीनल सैकुला। दिस आर नोन एज रीनल सैकुला। और क्या दिख रहा है आपको, इन रीनल पिरामिड्स में जो मेडुला में है, आपको ऐसे ऐसे स्ट्राइशंस दिख रहा है। ये स्ट्राइशंस कहाँ जा रहा है, कॉर्टेक्स। दीज आर नोन एज मेडुलरी रेज। अभी आपको माइक्रोस्कोपिक थोड़ा बताऊंगी तब समझ में आएगा, अभी बस याद कर लो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्या है। तो इन द रीनल पिरामिड आपको ऐसे स्ट्राइशंस मिल रहा है विच एक्सटेंड ओवर द कॉर्टेक्स, and these are known as medullary rays। ठीक है, अभी इतना समझो, उसके बाद आगे देखो। अब ये जो रीनल साइनस वाला एरिया था उसमें क्या है, यहाँ पे एक डायलेटेड फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। यही रीनल पेल्विस एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द किडनी कंटिन्यूअस हो जाता है एज अ यूरेटर। ठीक है, दिस रीनल पेल्विस फर्दर जाकर के क्या होगा, ये 2 to 3 मेजर ब्रांचेस देगा जिसको हम क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स। और ये मेजर कैलिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 8 to 11 क्या चीज में डिवाइड हो जाएगा, माइनर कैलिक्स हो जाएगा। और ये यही है माइनर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स में जो पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अभी सैकुला बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। तो ये खाली एरिया आपका साइनस दिख रहा है, जिसमें ये मैंने बताया था ना कि हाइनल में पार्ट भी होगा, तो ये पार्ट दिख रहा है। ये रीनल पेल्विस हो गया, मेजर कैलिक्स हो गया, माइनर कैलिक्स हो गया, ये आपका रीनल पैपिला वाला एरिया हो गया, ये आपका मेडुला हो गया, ये रीनल कॉलम है, और ये कॉर्टिकल लोब्यूल्स है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना, किडनी किससे बना हुआ है, इसमें क्या 1 to 3 मिलियन और यूरिनोसेरस ट्यूब्यूल्स से बना है। यूरिनोसेरस ट्यूब्यूल्स की क्या चीज होती है, क्या कॉम्पोनेंट होते हैं, हाँ, नेफ्रॉन। बेसिकली नेफ्रॉन है, और क्या है, एक पूरा कनेक्टिंग सिस्टम है। नेफ्रॉन में क्या है, ग्लोमेरुलस है और ट्यूबुलर सिस्टम है। ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो फिर यहाँ देखो, बेसिकली दो चीज से बना, यूनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया और एक कलेक्टिंग सिस्टम हो गया। यूनिफेरस ट्यूब्यूल में दो चीज हो गई, नेफ्रॉन हो गई और एक कलेक्टिंग पूरा सिस्टम है। नेफ्रॉन इट इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस एंड देन ट्यूब्यूल, ट्यूबुलर सिस्टम। ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस, इट इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। और ये ग्लोमेरुलस इट इज कवर्ड बाय अ वोमेन कैप्सूल। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस, है ना, हाँ, रीनल कॉर्पस कहते हैं। दिस इज द रीनल कॉर्पस। तो आपके नेफ्रॉन में क्या हो गया, ये तो ग्लोमेरुलस हो गया जिसको टफ्ट ऑफ कैपिलरी कह रहे हैं, और ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसमें क्या क्या आया, वोमेन कैप्सूल आ गया, देन ये आ गया ECT, देन रूप ऑफ LA एंड देन DCT। ये पूरा क्या हो गया आपका ट्यूबुलर सिस्टम। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिया, नेफ्रॉन बना दिया। इसका काम क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, कलेक्टिंग पार्ट है, जो भी यूरिन को कलेक्ट करेगा। तो वो किस चीज से बना, आपका बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होगी। इन नेफ्रॉन को ड्रेन करने के लिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होंगे, और ये डिफरेंट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल फ्यूज करके क्या बनाएंगे, कलेक्टिंग ट्रैक्ट। और ये कलेक्टिंग ट्रैक्ट, यही जो कलेक्टिंग ट्रैक्ट था ना, वहाँ आपको दिख रहा था, देखो ये किडनी का एक पिरामिड का स्ट्रक्चर दिखाया गया, इनर पिरामिड, जिसमें इनर पोर्शन मेडुला है और आउटर कॉर्टेक्स है। ये मेडुला इंडेंट कर रहा है माइनर कैलिक्स में, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं,
बोलो भाई, इतना से मैं बोल रही है, पैपिली बोलते हैं, ठीक है। और इस मेडुला में और आगे जाके कॉर्टेक्स में जो ये रेस दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मेडुलरी रेस। तो बेसिकली मेडुलरी रेस किस चीज से बनी है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से बनी है, ठीक है। तो दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल। और जो ये कलेक्टिंग डक्ट एंड ट्यूब्यूल को क्या करना है, जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है उसको कहाँ पास करना है, आपका माइनर में कैरिस में आएगा, नीचे कैरिस में आएगा, कैरिस में जाएगा और तब आके यूरेटर में जाएगा। तो यहाँ पे जो ये ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट को बोलते हैं। इस एरिया को एरिया ऑफ क्रिब्रोसा है, ठीक है। इस एरिया इज नोन एज एरिया ऑफ क्रिब्रोसा, ठीक है। तो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। और एक लोब ऑफ किडनी क्या होगा, अगर आपसे पूछा गया लोब ऑफ किडनी इज, तो एक रीनल पिरामिड, यहाँ देखो, वन रीनल पिरामिड अलॉन्ग विथ इट्स सराउंडिंग कॉर्टिकल रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, वन लोब ऑफ किडनी, है ना। एक पिरामिड और उसके आसपास जो कॉर्टिकल एरिया है, ये ट्रायंगुलर एरिया, इसको लोब ऑफ किडनी कहते हैं। और अगर लोब्यूल के बारे में पूछा जाए, व्हाट इज लोब्यूल ऑफ किडनी, तो मेडुलरी रे अलॉन्ग विथ इट्स सराउंडिंग कॉर्टिकल मार्जिन, इसको हम क्या बोलेंगे, लोब्यूल। जैसे रीनल पेल्विस की कैपेसिटी कितनी होती है, 5 to 7, है ना। चलो बाकी जो इसका डिटेल है यूरिनरी सिस्टम की सॉल्व मुझे ही पढ़ानी है, तो आगे बहुत डिटेल कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स है ये जो हम सॉल्व के क्लास में करेंगे। नाउ विल कम टू द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द किडनी। किडनी इज सप्लाइड बाय राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी। तो दिस इज द राइट एंड द लेफ्ट रीनल आर्टरी, बोथ आर द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आउटर, ठीक है। तो राइट रीनल आर्टरी इज स्लाइटली लॉन्गर as compared to left renal artery. It passes first behind the IVC and then behind the left renal vein, ठीक है। जो लेफ्ट वाली होती है, it passes only behind the left renal, ये आपका सिर्फ ये राइट रीनल वेन के और इंटीरियर वेना कावा दोनों के बीच से रन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इट इज पासिंग जस्ट ओनली बिहाइंड द लेफ्ट रीनल वेन। और ये क्योंकि एब्डोमिनल और लेफ्ट की साइड है, दैट्स व्हाई राइट रीनल वेन क्या है, as compared to left renal vein। और अगर जब अभी वेन पढ़ोगे तो उसमें क्या पढ़ोगे, लेफ्ट रीनल वेन इज लॉन्गर as compared to right renal vein, as IVC कहाँ है, IVC राइट साइड में है तो वेन बड़ा है लेफ्ट साइड का, और लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड का आर्टरी बड़ी, ठीक है। अब ये इम्पोर्टेंट चीज कि जब रीनल आर्टरी थी जो कि एब्डोमिनल ऑर्टा से निकली, ईच रीनल आर्टरी डिवाइड हो गई जाकर के एक एंटीरियर डिवीजन में और वन पोस्टीरियर डिवीजन। This is the anterior division जो पीछे की तरफ जा रही है, posterior division। This anterior division is again divided into 4 parts। अपर ये हो गया, एपिकल हो जाएगा, अपर, मिडल एंड लोअर पोर्शन, ठीक है। तो ईच पार्ट ऑफ द किडनी विच इज सप्लाइड बाय और इन आर्टरी को हम सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं। तो ईच पार्ट ऑफ द किडनी विच इज सप्लाइड बाय अ सेगमेंटल आर्टरी विच इज नोन एज वर्सकुलर सेगमेंट ऑफ किडनी, ठीक है। तो ऑल टुगेदर कितने सेगमेंट हो जाएंगे, 5 सेगमेंट। तो पहले की दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक एंटीरियर डिवीजन, एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन बड़ी है, वो क्या करती है, 4 सेगमेंट को सप्लाई करती है। पोस्टीरियर डिवीजन स्मॉल है तो वो ओनली एंड ओनली एक ही सेगमेंट को सप्लाई करती है, दैट इज द पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट किस चीज को सप्लाई करती है, एपिकल, अपर, मिडल, लोअर। और पोस्टीरियर वाली किसको सप्लाई की, ओनली द पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। और इसको इन दोनों के बीच में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो डिवीजन है, इन दोनों के बीच में जो ये लाइन है, ये दैट इज द लाइन ऑफ ब्रॉडल कहते हैं, बिकॉज इट इज अ लाइन वेयर जहाँ पे आप कोई भी वस्कुलर एनास्टोमोसिस ले रहा है। तो ये एक ऐसा किडनी में एरिया है लाइन में जो कि टोटली वस्कुलर होगा। तो कभी भी अगर किडनी स्टोन में यूज करना है या कोई और कार्सिनोमा है जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं किडनी को, तो जो इंटीरियर लाइन करेंगे वो जानी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वस्कुलर प्लेन, बिकॉज काफी एंटीरियर सेगमेंट से सप्लाई हो रहा है। और ये वाला जो पोर्शन है ये एंटीरियर व्यू है और ये पोस्टीरियर व्यू, तो दिस इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर सेगमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो ये है ये ब्लडलेस लाइन है, तो हम इंसिजन कहाँ से देते हैं, यहीं देते हैं ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द किडनी, on at the junction of medial 2/3 and lateral 1/3। आपको दिख रहा है medial 2/3 and lateral 1/3 के जंक्शन पे। तो ये एपिकल पोर्शन है, ये वाला पोर्शन
अपर, मिडल एंड लोअर है, और ये पोस्टीरियर पोजीशन है। एंटीरियर में आपको पोस्टीरियर नहीं दिख रहा है, तो इट इज अ ब्लडलेस एरिया एंड हेंस इट इज द लाइन ऑफ चॉइस ऑफ सिविल इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। तो एपिकल आपका किससे रिलेटेड होगा? अपर पोर्ट से रिलेटेड है। इंटीरियर आपका किससे रिलेटेड होगा? लोअर पोर्ट से रिलेटेड है। अब एंटीरियर सरफेस का अपर पार्ट आपका अपर वाला पोर्शन हो गया, इंटीरियर सरफेस का लोअर पार्ट मिडल वाला पोर्शन हो गया, और होल ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस का पोस्टीरियर सेगमेंट, एंड द किडनी इज डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द सप्लाई फ्रॉम अ सेगमेंटल आर्टरी। अब नाउ ईच सेगमेंटल आर्टरी जब किडनी को सप्लाई करनी जाएगी, देन इट विल कंटिन्यू इन अ लोअर आर्टरी। एक सेगमेंटल आर्टरी अगेन डिवाइड हो जाएगी, जिसमें 2 to 3 लोअर आर्टरी। लोअर आर्टरी देन डिवाइड हो जाएगी इंटर लोअर आर्टरी। ये सारी जो सेगमेंटल आर्टरी थी वो कहाँ पोर्शन में होगी? रिनल साइनस के। तो वो फर्दर आगे किडनी में एंटर करेगी, तो किस फॉर्म में एंटर करेगी? अब वो डिवाइड करके उसको क्या बना देगी? लोअर आर्टरी। लोअर आर्टरी की डिवीजन होगी तो वो क्या बनाएगी? इंटर लोअर आर्टरी। इंटर लोअर कहाँ रन कर रही है? इन बिटवीन द टू, क्या है, रीनल पिरामिड के बीच में जो आर्टरीज रन कर रही है उनको हम क्या बोलोगे? क्योंकि मैंने बताया ना ये एक लोब है, इन दो लोब के बीच में जो आर्टरी रन कर रही है उसको क्या बोलोगे? इंटरलोबर आर्टरी। अब जब किडनी के पिरामिड के बेस के पास आएगी तो ये डिवाइड कर जाएगी ग्लाइकोमोटोमेट्री दोनों साइड, और ये किडनी के सरफेस के अराउंड रन करेगी। इसको हम कहते हैं आर्कुएट आर्टरी। आर्कुएट आर्टरी फर्दर डिवाइड करेगी और बनाएगी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। तो क्या होगी? रीनल आर्टरी, देन दो डिवीजन है, ये पोस्टीरियर, that will form the 5 segmental arteries. Segmental artery will form the lobar, interlobar, arcuate will form the interlobular artery. अब देखो यही दिखाया गया, दिस इज वन पिरामिड। आपका यहाँ पे रीनल आर्टरी और सेगमेंटल आर्टरी था, देन इंटरलोबर के बाद ये आर्कुएट है, आर्कुएट से क्या बनाया? इंटरलोब्यूलर। इंटरलोब्यूलर आर्टरी क्या बनाता है? इट विल फॉर्म द एफरेंट आर्टरी। वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगी? एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल पे जाकर के क्या होगा? वहाँ पे कैपिलरीज बनाएगी, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलर कराएगा। तो दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज व्हिच विल फॉर्म द ग्लोमेरुलर। यहाँ से जो बाहर आर्टेरियोल निकलेगा उसको क्या बोलोगे? एफरेंट आर्टेरियोल। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड करके क्या बनाएगी? पेरिट्यूबुलर कॉर्टिकल प्लेक्सस बनाएगी। अब वापस ये क्या हो जाएगा? वेन स्टार्ट हो जाएगा। अब उल्टा हो गया स्टेन, यहाँ से क्या स्टेन स्टार्ट होगा? पहले इंटरलोब्यूलर वेन, देन आर्कुएट बोन, देन इंटरलोबर वेन, देन सेगमेंटल वेन, देन रीनल वेन, एंड रीनल वेन फाइनली ड्रेन इनटू द आर्टरी। समझ में आ गया? अब देखो ये स्टार्ट है रीनल आर्टरी, 5 सेगमेंटल आर्टरी थी, लोबर, इंटरलोबर, आर्कुएट, इंटरलोब्यूलर से एफरेंट आर्टेरियोल, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनाई, फिर एफरेंट आर्टेरियोल, फिर आपका ये वापस वहाँ पे पेरी कैपिलरी प्लेक्सस बना दिया, इंटरलोब्यूलर वेन, देन आर्कुएट वेन, इंटरलोबर वेन, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन, एंड फाइनली ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कावा। वो उसको सबसे समझ में आ गया। ये अभी मैंने आपको बता दिया कि वॉस्कुलर सेगमेंट क्या होता है। तो इस सेगमेंट इज सप्लाई बाय अ सिंगल आर्टरी, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रेव, उन्होंने किया था इसको कि हर सेगमेंट और की जो ब्लडलेस वाला लाइन है वो उन्होंने क्रिएट किया था। तो ब्लडलेस लाइन विच इज एट द जंक्शन ऑफ मिडल 2/3 एंड लेटरल 1/3 ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, तो ये मस्कुलर ए मस्कुलर प्लेन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, वेनस ड्रेनेज अभी बता ही दिया मैंने कहाँ से होता है। वेनस ड्रेनेज से होता है ड्रेन इनटू द इंफाई वेन, और ये याद रखना है कि लेफ्ट रीनल वेन इज लॉन्गर। अभी आगे बताऊंगी क्यों। लिम्फेटिक कहाँ हो रहा है? पैराऑर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, और के आसपास जो लिम्फेटिक ग्रुप होगा लेटरल पैराऑर्टिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, वहाँ पे जाके से ड्रेन करेगा। नाउ नर्व सप्लाई इज सप्लाइड बाय द रीनल प्लेक्सस ऑफ नर्व। इसमें बोथ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होंगे। सिम्पैथेटिक इज फ्रॉम T10 to L1 फाइबर सेगमेंट, और पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से सप्लाई आएगी? वेगस से आएगी। अब किडनी को जब भी हम एक्सपोज करते हैं, सर्जरी करना होगा तो कहाँ से करते हैं हम? पोस्टीरियर एस्पेक्ट से करते हैं। तो पोस्टीरियरली हमें ट्रेस करना होता है किडनी को। तो फिर क्वाड्रेंगुलर एरिया या रेक्टेंगुलर एरिया, इसको हम कहते हैं मॉरिसन पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या है? इसमें 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल लाइन है। द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन इज एट द लेवल ऑफ T11 वर्टिकल एंड द लोअर हॉरिजॉन्टल लाइन इज एट द लेवल ऑफ L3 वर्टिकल। और क्या करते हैं? 2 वर्टिकल लाइन भी लेते हैं।
पहला जो वर्टिकल लाइन होगा वो मीडियल साइड होगा, ये दैट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन एंड द सेकेंड वन इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन. दिस इज द लोकेशन ऑफ किडनी ऑन द पोस्टीरियर. ठीक है, एक ऊपर वाला लाइन 11 से 4 L3 से, दो वर्टिकल लाइन मिड लाइन से 2.5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर. तो ये आपका किडनी का एरिया होगा. जब किडनी को पीछे से एक्सपोज करोगे तो क्या क्या सबसे पहले स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, उसके डीप में पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलम्बार फेशिया अलोंग विद लैटिस डोर्साई एंड इरेक्टर फाइनी. उसके नीचे जाओगे तो आपको इरेक्टर है ना, इरेक्टर फाइनी मसल मिलेगा. उसके आगे आपको मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलम्बार फेशिया, उसके बाद पॉडेटस लंबोरम, उसके आगे इंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलम्बार फेशिया है ना. थोरैकोलम्बार फेशिया को एब्डोमिनल वॉल में पढ़ लिया होगा, ये डायग्राम भी पढ़ा होगा. ठीक है, तो दीज आर द 7 स्ट्रक्चर्स टू विच आप किडनी को एक्सपोज कर सकते हो प्रॉपर. ठीक है, नाउ यू अप्लाई ग्लोबुलेटेड किडनी. क्या होता है कि अच्छा मैं ये बात है किडनी जब फीचर लाइट में फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ में होता है. बाद में ये सब फ्यूज कर जाती है और एक स्मूथ किडनी बनता है. बट इफ ग्लोबुलेशन फर्स्ट इज तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलेटेड किडनी कहते हैं. और उसका कोई ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है. बट अडल्ट साइज में भी क्या दिखेगा, ग्लोबुलेशन स्टिल आपको दिखेगा, परसिस्ट करेगा तो ग्लोबुलेटेड किडनी. और शू किडनी क्या होता है कि दोनों किडनी का लोअर पोर्ट अगर ज्वाइन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, और शू किडनी बोलेंगे. और ये ज्वाइनिंग पोर्शन को हम इस्टमक कहते हैं. इस इस्टमक की वजह से क्या होता है, अगर आपको पता होगा किडनी का जो डेवलपमेंट होता है ना वो लोअर पार्ट होता है, एब्डोमेन में होता है. बाद में किडनी एसेंड करके अपनी पोजीशन पे जाती है. जो डेवलपमेंट करो जैसे टेस्टिस डिसेंड करता है वैसे ही किडनी एसेंड करता है. तो किडनी का डेवलपमेंट तो लोअर ही हो रहा था, बट एज की ये स्टमक प्रेजेंट होता है और स्टमक के एंटीरियरली इंफीरियर वेसेल से काफी पास होती है, जिसको ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल होता है. इट विल हैम्पर द एसेंट ऑफ द किडनी. और इन केस में और शू केस में किडनी आपको कहाँ मिलेगा, लोअर वर्टिब्रल रीजन में. Not at the level of equal to vertebrae into the ये hamper करता है इंटीरियर मेसेंट से काट के इसको ऊपर ऐसा ही करता है. The third is the pancake kidney. ये भी एक congenital anomaly है, इसमें दोनों किडनी फ्यूज करके एक सेल की तरह फॉर्मेशन हो जाता है और मिड लाइन के आगे प्रेजेंट हो गया. दैट इज कॉल्ड द pancake kidney. The next is the congenital polycystic kidney. Polycystic kidney में क्या होता है कि आपका दो पार्ट है, एक सिक्रेटरी पोर्शन है नेफ्रॉन और एक आपका ट्यूबुलर ये है कलेक्टिंग पार्ट. इन दोनों का अगर डेवलपमेंट के टाइम में फ्यूजन नहीं होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है बट उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा. एक्सक्रीशन तो हो रहा है, बंद हो रहा है, बट बाहर ड्रेन नहीं हो पाएगा. तो ड्रेन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो जितना भी ट्यूबुलर सिस्टम है नेफ्रॉन का वो क्या होगा, वो डायलेटेड होगा और सिस्ट की फॉर्म में हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिटेंशन सिस्ट. और उन सारे सिस्ट में क्या होगा, यूरिन का एक्युमुलेशन हो जाएगा. तो पूरी किडनी आपको ऐसे सिक्स तरह दिखेगी. तो इसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल पॉलीसिस्टिक डिजीज. तो व्हाट इज कॉन्जेनाइटल पॉलीसिस्टिक डिजीज, कि जो दो पोर्शन है किडनी का है ना, आपका नेफ्रॉन और कलेक्टिंग पार्ट, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता. तो यूरिन कहाँ एक्युमुलेट हो रहा है, विद इन द किडनी हो रहा है. तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी. अच्छा, किडनी को टालपेट करना इज नॉट इजी, बट अगर कोई पेशेंट बहुत ही लीन है, थिन पेशेंट है और उसका किडनी एनलार्ज है, देन ओनली यू कैन टालपेट कर सकते. अदरवाइज किडनी इज नॉट टालपेट. टालपेट कैसे करते हैं, बाई हैंड में करते हैं. राइट हैंड को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे रखेंगे और जो लेफ्ट हैंड को वो पीछे लोअर इंटेस्टाइन रीजन में रखेंगे. और इस एक टेक्निक होता है बेलॉटमेंट मेथड. इसमें क्या करते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का, उससे क्या करते हैं, किडनी को ऊपर प्रेस करते हैं. तो जो लोअर पोल ऑफ किडनी का है वो आपको राइट हैंड पे फील होगा. ये दो ही केस में फील हो सकता है, इफ द पेशेंट इज वेरी लीन एंड थिन या उसकी किडनी एनलार्ज है. ठीक है, तब आपको फील होगा. अदरवाइज किडनी इज नॉट टालपेट. तो इसको बेलॉटमेंट मेथड कहते हैं. रीनल कैविटी सबको पता है कि किडनी में स्टोन हो जाएगा, स्टोन का एक्युमुलेशन हो जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड रीनल कैविटी. रीनल कैविटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट क्या होता है, या तो रीनल पेल्विस में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, या ब्लैडर में हो सकता है. ठीक है. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुली होता है जिसको हम स्टैग वन कैलकुलस कहते हैं. ये स्टैग वन कैलकुलस क्या होता है, ये पूरा का पूरा पेल्विस और जो मेन माइनर कैलकुलस है उसका शेप देता है. ठीक है. इट इज अ बिग कैलकुलस व्हिच चेंज द शेप ऑफ, कितना है ये पूरा पेल्विस और उसकी कैलकुलस का शेप दे देता है. तो हम क्या बोलते हैं, स्टैग वन कैलकुलस कहते हैं. ठीक है. अब अगर रीनल स्टोन होगा तो वो क्या करेगा, वेन कॉज करेगा, रीनल स्टोन कॉज करेगा.
तो पेन कहाँ होता है? आपको लॉइन रीजन में प्रेजेंट होगा और देन इट डिसेंड डाउनवर्ड एंड मीडियली टुवर्ड्स द ग्राउंड. ठीक है, कहाँ पेन होता है? लॉइन. क्यों लॉइन में क्यों होगा? क्योंकि 12 से सब है ना, तो यहाँ पे लॉइन में पेन होगा ड्यू टू द सबकॉस्टल नर्व. और ग्राइन में क्यों जाएगा? यूरिनल नर्व से जाएगा, तो वो ग्राइन में जाएगा. और जेनाइटोफिमरल नर्व का अगर मुझे वैल्यू याद हो तो L1 L2 होता है, तो जिसकी वजह से एंटीरियर पार्ट ऑफ द अपर एस्पेक्ट ऑफ द थाई में भी पेन होता है. ठीक है, पेन क्या होता है? सडन ऑनसेट ऑफ पेन होता है और ये डल इच से लेकर के स्पाज्मोटिक पेन तक हो सकता है. ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी का अगर किसी को इसी का डिजीज है तो उसको हम कहाँ उसकी टेंडरनेस फील होती है एट एन एंगल नोन एज रीनल एंगल. व्हाट इज रीनल एंगल? इट इज एन एंगल, इट इज क्लियरली आप देखोगे एट दी, कहाँ देखोगे? एट दी लोअर बॉर्डर ऑफ 12th rib एंड द लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टस स्पाइनल के बीच में जो एंगल बनेगा विच कवर्स द लोअर पोर्शन ऑफ द किडनी, इसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल एंगल कहते हैं. व्हाट इज रीनल एंगल? Renal angle, it is an angle formed by the lower border of 12th rib and lateral border of erector spinae muscle. This is called renal angle. ये site of tenderness होता है at in kidney diseases. अच्छा, एक टेस्ट करते हैं Murphy's Punch sign, जो कि किस टेस्ट पे करते हैं? पेरीनेफ्रिक एब्सेस है या रीनल स्टोन है. उसमें क्या करेंगे? इसी लोकेशन पे आप पेशेंट को जब पुश करोगे तो उसको टेंडरनेस फील होगा. तो इस साइन को क्या बोलते हैं? Murphy's Punch sign. फ्लोटिंग किडनी में क्या होगा? मैंने क्या बताया था? तो अगर पैरानेफ्रिक पार्ट, पेरीनेफ्रिक पार्ट का कमी हो जाएगा तो क्या होगा? किडनी फ्लोटिंग हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा और मूव अप एंड डाउन करेगा विदिन द रेडियल सिस्टम. अगर कोई एंड स्टेज रीनल डिजीज का पेशेंट है तो उसमें हम क्या करते हैं? किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं. तो किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे तो डोनर से यूजुअली हम कौन सी साइड का किडनी प्रेफर करते हैं? लेफ्ट साइड का. व्हाई? बिकॉज जो वेन्स है वो लॉन्गर होती है. डोनर से हम किडनी लेंगे वो लेफ्ट साइड का. और किडनी को हम नॉर्मल पोजीशन पे इम्प्लांट नहीं करते. हम कहाँ इम्प्लांट करते हैं? हम रेट्रोपेरिटोनियल मीडियल फोसा में इम्प्लांट करते हैं. कहाँ करते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन कम फील हो वेसल्स जो एनास्टोमोस करेंगे, तो दैट्स व्हाई हम उसको कहाँ एनास्टोमोस कर देते हैं? रेट्रोपेरिटोनियल इन द ईलियक फोसा. और डोनर की और रेसिपिएंट की जो डोनर की जो रीनल आर्टरी और वेन होगी उसको किससे इससे ज्वाइन कर देंगे? रेसिपिएंट के एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और वेन के साथ ज्वाइन कर देंगे. और लोकेशन क्या होगा? ठीक है. और जो डोनर का यूरेटर होगा उसको ब्लैडर में, रेसिपिएंट के ब्लैडर में इम्प्लांट. So this is the procedure of killing. Last है तो dialysis done to purify the blood and remove the excess waste. दो मेथड से होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस. पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या करते हैं? जो आपका डायलिसिस फ्लूइड है उसको पेरिटोनियम में डालते हैं और फिर यहाँ से अलॉन्ग विद द पेरिटोनियल फ्लूइड सारे वेस्ट को रिमूव कर करके ड्रेनेज ट्रैक्ट में ले जाते हैं. So this process is known as peritoneal dialysis. The next one is the hemodialysis. Hemodialysis ब्लड के थ्रू करते हैं. इसमें पेशेंट की ब्लड को बाहर निकालते हैं. ये डायलाइजर मशीन होता है जिसमें ब्लड जाता है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? इसको डायलिसिस यूज होती है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. यहाँ पे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है एंड अगेन क्लीन ब्लड को पेशेंट के अंदर डाला जाता है. तो these are the two techniques of dialysis. एक तो पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि पेरिटोनियल फ्लूइड को क्लीन किया जाता है ब्लड, और एक ब्लड के थ्रू हेमोडायलिसिस. नाउ द सेकंड थोड़ा सा सुप्रारीनल ग्लैंड क्या है? इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज सिचुएटेड एट द अपर पोल ऑफ द किडनी. और एट इसका लेवल क्या है? आपका T12 के लेवल पे है ना. किडनी का अपर पोल कहाँ था? T12 के लेवल पे था. तो इट इज जस्ट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T12 vertex. दिस किडनी दिस सुप्रारीनल ग्लैंड हैज गॉट टू पार्ट. इसमें भी क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला होता है. Cortex is again divided into three parts: glomerula, fasciculata और reticulata. ये सारे different hormones. glomerula क्या secrete करता है? mineralocorticoid, जो कि आपका water and electrolyte balance को maintain करेगा. fasciculata क्या करता है? glucocorticoid है ना, blood sugar. और reticulata हाँ sex hormone को. और medulla क्या करता है? एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को secrete करता है. तो इसके दो पार्ट हो गए. लोकेशन अभी बताया था T12 के लेवल पे होता है एट द लेवल ऑफ द क्रस्ट ऑफ डायफ्राम. राइट वाला जो होता है वो आईबीसी और डायफ्राम के बीच में है. ठीक है, वेस्ट होता है इन बिटवीन द आईबीसी एंड द डायफ्राम. इसका जो राइट वाले का शेप है वो पिरामिडल इन शेप होता है. लेफ्ट वाला जो है वो सेमी लीनियर या रेक्टेंगुलर शेप होता है. इट इज पिरामिडल और ट्रायंगुलर इन शेप. इट इज
सेमी ल्यूनर शेप। इसका अगर पार्ट देखो तो पिरामिडल है तो क्या पार्ट होगा, एपेक्स होगा, बेस होगा, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। और इसमें क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस, बॉर्डर, मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। बट अगर इसमें क्या होता है, एपेक्स और बेस है, इसमें एंड है, अपर एंड एंड लोअर। ठीक है, तो इसका शेप क्या है, सेट है। और इसका क्या है, ट्रायंगुलर है, तो एपेक्स है, बेस है, टू सरफेस और बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, टू बॉर्डर इन बोथ मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। और क्या होगा, एक हाइलम होगा। हाइलम वो पोजीशन होगा जहाँ से वेसल एंट्री और एग्जिट करेगी, सो दैट इज दी हाइलम। ठीक है, ये रिलेशन है, कुछ देख लेना कि राइट वाला एंटीरियरली किससे रिलेटेड होगा, लिवर और आईवीसी से, और लेफ्ट वाला स्टमक और पैंक्रियाज और स्प्लीनिक वेसल से। पोस्टीरियरली किससे रिलेटेड होगा, किडनी और डायफ्राम, और यहाँ भी किडनी और डायफ्राम से रिलेटेड होगा। हाइलम, दिस इज द हाइलम जहाँ से आपका सुप्रारीनल वेन एग्जिट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज दी हाइलम। हाइलम इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपेक्स ऑन द राइट साइड एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। अच्छा, इसमें भी दो शीट होगी, जैसे वहां बताया था, वहां कितनी थी, 4, यहाँ 2 थी। कौन सी होगी, एक तो पहले उसकी जो एक तो पेरीनील फैट वाली हो जाएगी, जो कि यूरिनरी टिश्यू में लेयर होगा, और उसके बाहर क्या आएगा, क्या आएगा, है ना। तो वो ये दो इसकी कवरिंग होगी। आर्टेरियल सप्लाई किससे होगी, इट इज सप्लाइड बाय 3 आर्टरी, द सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। सुपीरियर इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर पेनिक आर्टरी, मिडल इज द ब्रांच ऑफ डायरेक्ट एब्डोमिनल आर्टरी, एंड इंफीरियर इज द ब्रांच ऑफ राइट एंड लेफ्ट। तो इससे सप्लाई होगा। रीनल वेन कैसे होगा, रीनल वेन से होगा, राइट सॉरी सुप्रारीनल वेन से। राइट सुप्रारीनल वेन किसमें ड्रेन करता है, आईवीसी में, और लेफ्ट सुप्रारीनल वेन लेफ्ट रीनल वेन में, वो डायरेक्टली आईवीसी में नहीं ड्रेन कर रहा है, दैट इज ड्रेनिंग इनटू द लेफ्ट रीनल वेन। लिम्फेटिक चेन है किडनी का, दैट इज पैराओटिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहा है। नर्व सप्लाई सीरियस प्लेक्सस से सप्लाई फ्रॉम सीरियस प्लेक्सस। एंड अगर कॉर्टिकल सिक्रीशन कम हो जाएगा तो इट विल लीड टू द डिजीज नोन एज एडिशन डिजीज। बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और रिमूव करते हैं उस प्रोसेस से क्या कहते हैं, एड्रिनलेक्टोमी कहते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ड्यूरिंग एड्रिनलेक्टोमी जब आप एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि सुप्रारीनल वेन को पहले आपको लाइजेट करना है, अदरवाइज जो मेडुला की डिसीज वो ब्लड में तुरंत सारा एंटर कर जाएगी। तो सबसे पहले सडन रिलीज हो जाएगा कैटेकोलामाइन का वाइट मैनिपुलेटिंग कर रहा है। तो सबसे पहले आपको रीनल वेन को क्या करना है, लाइजेट करना है, और देन आपको एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव करना है। एंड लास्ट इज न्यूक्रोमोसाइटोमा। ये क्या है, एड्रिनल मेडुला जो पोर्शन पैपिलर वाला उसका ट्यूमर है। तो ट्यूमर बेनाइन कंडीशन है होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जिकल रिसेक्शन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि एक्सेसिव मेडुला क्या सिक्रीट कर रहा है, एपिनर्जी या नॉन एपिनर्जी, तो उसका एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, तो इट विल लीड टू अ ट्यूमर नोन एज न्यूक्रोमोसाइटोमा। These are the clinical symptoms present, high blood pressure होगा, increased heart rate, palpitation, headache और respiratory sweating. These are the features present in this patient, that is न्यूक्रोमोसाइटोमा, benign tumor, otherwise treatment of choice. ठीक है।